प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में आज इस प्रातःकाल अभी भी हम 12 बजे तक सुबह की स्थिति में है और इसलिए सुबह आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और प्रभु में आप सबको जय मसीह कहता हूँ। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் நான் வாழ்த்துக்களை இந்த காலை நேரத்தில் தெரிவிக்கிறேன். जैसा भाई साहब ने आज ये बताया कि मेरे लिए तमिल कलीसिया जो है वो नई नहीं है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने मुझे जानते हैं। सन 2000 से लेकर के और 2008 के बीच में मैं यहाँ पर था और कई बार मैं आपकी कलीसिया में रहा। उस समय चर्च बिल्डिंग का स्वरूप अलग था, लेकिन अभी इस चर्च बिल्डिंग को देख करके यार मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने सचमुच में इस कलीसिया को न केवल मटीरियली न केवल संख्या में बढ़ाया है, लेकिन साथ ही साथ भवन के रूप में भी बढ़ाया है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। கடந்த 2000 வரைக்கும் நான் இங்கே போபால்ல இருந்த நாட்கள்ல உங்கள் மத்தியில நான் அநேக முறை வந்திருக்கிறேன். அன்றைக்கு ஆலயம் வேறு விதத்தில் இருந்து, ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய அளவிலே ஆண்டவர் உங்களுக்கு கட்டி தந்திருக்கிறார். எனவே நீங்கள் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில மாத்திரமல்ல எல்லா வகையிலும் வளர்ந்திருக்கிறீர்கள். அதுக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி. भाई साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ, फिर से याद किया और अवसर दिया कि आप लोगों के साथ उस टूटी हुई सहभागिता को फिर से रिवाइव कर सकें। संगत की दैहिक रूप से दूर रही, लेकिन प्रार्थनाओं में जरूर हम एक दूसरे के साथ बने रहे। எனவே நான் உங்கள் போதவருக்கும் நான் நன்றிகளை தெரிவிக்கிறேன். காரணம் இடைவெளி உங்களுக்கும் எனக்கு ஏற்பட்டது. அந்த இடைவெளியை நீக்கும்படியாக இந்த நாளிலே நான் உங்கள் மத்தியிலே வந்திருக்கிறேன். சரீர பிரதானமாக ஒருவர் நாம் சந்திக்காமல் வந்தாலும் ஆவிக்குரிய ரீதியிலே ஒருவருக்காக நாம் ஜெபித்து வந்திருக்கிறோம். அதற்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். प्रभु का धन्यवाद हो इसलिए कि फिर से आज की इस प्रातःकाल आपके साथ में हूँ। उसके वचन से हम तुझे देखने का प्रयास करेंगे। எனவே இந்த நேரத்துக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். கொஞ்ச நேரம் நாம் ஆண்டவருடைய வசனத்தை நாம் தியானிப்போம். ஹிந்தி வாய்ஸ் வருதா? சவுண்ட் ஓகேனா? हम इन दिनों में अभी भी क्रिसमस के आत्मा में बने हुए हैं। நாம் இன்றைக்கு கூட நாம் அந்த கிறிஸ்துமஸை குறித்த அந்த நினைவுகளோடயே நாம் இன்றைக்கு நாம் இருக்கிறோம். और विश्व स्तर पर हम सब क्रिसमस की खुशियों को मनाने में लगे हुए। எனவே உலகம் முழுவதிலும் நாம் கிறிஸ்துமஸை குறித்த கொண்டாட்டத்திலே நாம் இருக்கிறோம். आज का जो स्थल गॉस्पेल पोर्शन जो था, आपने यदि उसको ध्यान पूर्वक फॉलो किया होगा तो उसमें भी एक घटना का वर्णन हमें देखने को मिलता है। எனவே இன்றைக்கு நாம் வாசித்த இரண்டாவது வேத பகுதியை நாம் பார்க்கும்போது அதிலே ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை நாம் இந்த நாளிலே சிந்திப்போம். यदि हम 3 गॉस्पेल्स मैथ्यू, मार्क एंड लूक उनके आरंभिक अध्यायों का अध्ययन करेंगे तो वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पूर्व और प्रभु यीशु मसीह का जन्म और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं को बताते हैं। இங்கே நாம் மத்தேயு, மார்க், லூக்கா 3 சுவிசேஷங்களை நாம் பார்க்கும்போது அந்த சுவிசேஷங்களின் ஆரம்ப அதிகாரங்களை நாம் பார்க்கும்போது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்புக்கு முன்னான காரியங்கள், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த காரியங்கள், இந்த காரியங்களை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். इन आरंभिक अध्यायों में इन घटनाओं के अंदर विभिन्न पात्र या विभिन्न चरित्र, विभिन्न कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। எனவே இந்த அத்தியாயங்கள்ல நாம் பல்வேறுபட்ட நபர்களை குறித்த அவர்களுடைய காரியங்களை குறித்த விஷயங்களை நாம் பார்க்கிறோம். और इन पात्रों का या इन चरित्रों का जब हम उनके जीवनों का अध्ययन करते हैं तो हम इस बात के ऊपर आते हैं और एक विषय निकल करके और इन आरंभिक अध्यायों से जो आता है वो है क्रिसमस इज अ फेस्टिवल ऑफ ओबीडियंस। எனவே இந்த அதிகாரங்கள்ல நாம் பார்க்கும்போது கிறிஸ்துவின் பிறப்பை குறித்து நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு செய்தி என்னவென்று சொன்னால்,
கிறிஸ்துமஸ் என்பது கீழ்ப்படிதலினாலே ஏற்பட்ட ஒரு சம்பவம் என்பதை நாம் இந்த காரியங்கள் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். आइए मेरे साथ। डायरेक्ट हिंदी चलेगा है ना, क्योंकि टाइम बहुत लेट हो रहा Can है. you understand Hindi? You will follow, huh? I'm sorry, मैं तमिल नहीं बोल सकता। I would have directly preached in Tamil. Please continue. Thank you वजह से खाना डायरेक्टली Praise God. आगे इसको भी डायरेक्टली बताया इसको भी. All right, thank you, Pastor, for giving this liberty. प्रभु का धन्यवाद हो। Language is not a barrier, fine? और मैं विश्वास करता हूँ कि हम हिंदी भाषी प्रदेश में हैं, so we all understand. और हमें गर्व भी होना चाहिए कि we are Indians, है ना? तो हिंदी हमारी मातृभाषा है ना? तो anyway, प्रभु का धन्यवाद। मैं बात कर रहा था कि क्रिसमस के जो पात्र हैं, क्रिसमस की घटनाओं के जो पात्र हैं, वो हमें एक विषय को बहुत अधिकाई के साथ बताते हैं कि क्रिसमस इज अ फेस्टिवल ऑफ ओबीडियंस, आज्ञा पालन या आज्ञा माने जाने का पर्व है। और आज का जो गॉस्पेल पोर्शन आपके सामने पढ़ा गया लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसके 5वें पद से लेकर 25वें पद, और उसके बाद अंतिम हिस्से को जब हम देखते हैं तो एक दंपति या एक फैमिली का जिक्र है यहाँ पर, जिनका नाम लिया गया है जकरिया और इलीशिबा। जकरिया और इलीशिबा, और इन दोनों के विषय में परमेश्वर का वचन जो है 5वें पद के अंदर इस प्रकार से कहता है। यदि आप बाइबल अपने खुले हुए रखे हैं तो फॉलो करिएगा। 5वें पद में लिखा है, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था। इन दोनों को यहाँ पर बताया गया है, याजक है, परमेश्वर का प्रीस्ट है और परमेश्वर के मंदिर की वो सेवकाई में है। और 6वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। पति पत्नी के रूप में ये प्रभु की पूर्णकालिक सेवका, फुल टाइम मिनिस्ट्री, पूर्णकालिक सेवकाई में सेवक के रूप में थे। जकरिया याजक है। और थोड़ा सा और आगे चलें तो इस पद में यहाँ पर दिया हुआ है 6वें पद में, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले। प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर क्या थे? निर्दोष, ब्लेमलेस, उसके ऊपर वो चलने वाले थे। इन अदर वर्ड्स, they are the followers of God's word. In other words, they were obedient people. ये दोनों क्या थे? प्रभु की आज्ञा का पालन करने वाले लोग थे। और थोड़ा और अगर हम आगे चलें, 7वें पद में लिखा है, उनके कोई भी संतान न थी क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों क्या थे? अपनी बुजुर्गावस्था में है। आज्ञा मानना या आज्ञा पालन करना इनके लिए एक दिन, एक महीना, एक साल का काम नहीं था। लेकिन ये क्या कर रहे थे? वो अपने बुढ़ापे तक क्या है? व्यवस्था पर, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के नियम पर बिल्कुल निर्दोष रीति से उसकी आज्ञा का पालन करने में अपना जीवन दिए हुए। प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले जॉन द बैप्टिस्ट इस परिवार के द्वारा से आने वाला, लेकिन उसके पहले जब हम माता पिता के रूप में इन दोनों को देखते हैं, हम इस बात को पाते हैं कि वे दोनों परमेश्वर के सामने क्या थे? धर्मी थे। शब्द काम में लिया है धर्मी, राइचियस पीपल। 2 शब्द हैं डिक्शनरी के, एक है धार्मिक और दूसरा है धर्मी।
रिलीजियस एंड राइचियस, और इन दोनों के ही मायने अलग अलग है, इन दोनों के ही मतलब अलग अलग है। रिलीजियस पीपल या धार्मिक लोग वे हैं जो नियमित रूप से चर्च आते हैं, नियमित रूप से अपना दान देते हैं, नियमित रूप से भलाई के काम करते हैं, नियमित रूप से व्यवस्था पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पढ़ते हैं नियमित रूप से, है ना, अपने घरों में भी बाइबल दुआ करते हैं। दे आर रिलीजियस पीपल। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी धार्मिक लोग बहुत थे, फरीसी और सदूकी, है ना, फरीसी और सदूकी जो पाखंड करते थे। सो धार्मिक लोग जो हैं वो क्या है, या धार्मिक लोगों का जीवन जो है एक तरीके से पाखंडी जीवन है। क्यों? क्योंकि उनकी कथनी, उनकी करनी दोनों में अंतर है। धर्मी, राइचस, धर्मी वो है जिसका सीधा सीधा संबंध परमेश्वर से, जिसका सीधा संबंध किससे है? परमेश्वर से है, और वो परमेश्वर की आज्ञा को सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे प्रथम स्थान देकर के उसके ऊपर वो क्या करते हैं? चलते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर वचन उनसे कह रहा है कि तुम्हें ये करना है, सच बोलना है, ईमानदारी का जीवन जीना है, तो दे विल डू इट। सिर्फ पढ़ने वाले नहीं। ये दंपति जो जकरिया और इलीशिबा की थी, ये दोनों क्या थे? परमेश्वर का वचन सिखाता है कि वे परमेश्वर की व्यवस्था, उसके नियमों का पालन करने वाले ऐसे लोग थे जो बिल्कुल निर्दोषता के साथ चलते, यानी उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता था। किस बात में? वचन के पालन करने में। आज की प्रातःकाल प्यारे मित्रों, आइए हम अपने जीवनों को जांचें, परखें, देखें कि क्या मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में, पति पत्नी के रूप में, माता पिता के रूप में परमेश्वर के वचन का पालन करने वाला जीवन है वा नहीं। आज हम बहुत सारी गवाहियों को सुन रहे थे। मेरे लिए थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट यह रहा कि मैं तमिल नहीं समझता, अदरवाइज मैं आप लोगों के साथ उतना ही आत्मसात हो पाता समझ करके कि आप के जीवन में प्रभु ने कैसे काम किया है। तो प्रभु हमारे जीवनों में इस वर्ष भर कार्य करता रहा, इस बात की गवाही हमने आज की सुबह में सुनी। हमारे जीवन का ये जो वर्ष बीता है, इस वर्ष में परमेश्वर ने मेरे उद्धार के जीवन में, इन द लाइफ ऑफ माय सल्वेशन, मेरे उद्धार के जीवन में क्या किया, वो सबसे बड़ा काम होगा। यदि मैंने 1 जनवरी 2021 को उद्धार के अनुभव में जहां था, आज 26 दिसंबर 2021 को भी वहीं खड़ा हुआ हूं, तो शायद मैं परमेश्वर के साथ साथ नहीं चला या नहीं चली। मुझे अपने जीवन के आत्मिक विकास को चेक करना है। Am I walking daily with the Lord or not? मैं अपने प्रभु के साथ उसके वचन के माध्यम से उसके साथ साथ चला हूं अथवा नहीं। उद्धार की क्या स्थिति है मेरे जीवन? ये दंपति क्या थी? प्रभु के वचनों और नियमों का अक्षरशः पालन करने वाली दंपति। ऐसा परिवार था जो व्यवस्था, नियम या परमेश्वर की आज्ञाओं से ना तो दाएं मुड़ते थे ना बाएं मुड़ते थे। आपको याद होगा जब लीडरशिप ट्रांसफर हो रही थी मोसेस से जोशुआ के हाथ, पहला अध्याय यहोशू के पुस्तक, उसके पहले 8-9 पद आप पढ़िएगा तो आपको वहां पर याद होगा कि मूसा जो है वो लीडरशिप देते हुए यहोशू से ये कह रहा है कि तू ये व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी पर रात दिन क्या करना, ध्यान दिए
रहना और ना तो इससे दाएं मुड़ना ना इससे बाएं मुड़ना। God is seeking, searching people who will be obedient. परमेश्वर खोज रहा है प्यारे मित्रों आज कि उसकी आज्ञा मानने वाले लोग। You know the biblical definition of sin is what? What? Anyone? क्या है biblical definition? Disobedience to God's commandment is sin. हवा और आदम क्यों गिरे थे पाप में? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। That is sin. बाकी सारी बातें हैं, चोरी करना, झूठ बोलना, अपराध करना, हत्या करना, धोखा देना, बलात्कार करना, भ्रष्टाचार, ये सब these are all fruits of sin. Fruits of sin. तो आज्ञा तोड़ना क्या है? पाप है। और आज प्रभु हमसे, कलीसिया से, आपसे और मुझसे क्या चाहते हैं? लाइफ ऑफ ओबीडियंस। हमसे चाहते हैं प्रभु आज्ञा पालन का जीवन। और आज्ञा कहाँ है? कोई बाहर से आके बताएगा आप? आपके पास प्रभु ने दिया, आपके हाथ में बाइबल है, परमेश्वर का वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे पास हमारी अपनी मातृभाषाओं में हमारी बाइबल से उपलब्ध है। If I am not mistaken, Tamil Bible is the first translation. Am I right? First translation. You are fortunate people. सबसे पहले आपको मिला प्रभु का वचन। प्रभु का धन्यवाद हो। And that is why the Tamil church is the strongest church in this country. Praise God. I praise God. आज आप लोगों के बीच में आकर मुझे लग रहा है कि मैं इंडियन इवेंजेलिकल मिशन के साथ साउथ इंडिया चला गया। I have been many times to the south. उस सेवकाई के दौरान मेरा बेटा भी बैठा हुआ है, वो भी हम लोग पूरे परिवार के साथ साउथ में होते थे कई बार मिशनरी कन्वेंशंस के अंदर। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें हमारी अपनी मातृभाषा में ये आज्ञाएं और नियम दिए हैं। हम ऐसे धन्य समाज के लोग हैं जिनके पास प्रभु का हमारे जीवनों के लिए, आध्यात्मिक जीवनों के लिए ब्लूप्रिंट है। आप अंधकार में नहीं हो। कहाँ जाना है, किस राह में बढ़ना है, कैसे आपको आचरण करना है इस पृथ्वी के ऊपर, सब कुछ यहाँ है। ट्रेजेडी क्या है कि बहुत बार हम इस वचन को पालन करने में चूक जाते हैं। बहुत बार हम चूक जाते हैं और इस कारण से वो आशीषें जो प्रभु आप पर मुझे देना चाहता है आध्यात्मिक, मैं मटेरियलिस्टिक आशीषों की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम वेरी क्लियर, है ना? मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स जो है ना, दे आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ लाइफ व्हिच गॉड हैज गिवन टू यू। सबसे बड़ी आशीष क्या है? जीवन, लाइफ। आज हम जिंदा हैं, प्रेज गॉड, सबसे बड़ी आशीष है ये। बाकी चीजें तो सब लॉर्ड प्रोवाइडेड इफ वी आर ओबीडिएंट। अगर हम प्रभु की आज्ञाओं के मानने के लिए ईमानदार होंगे तो आप असंभव कामों को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। दैट इज व्हाट दिस पैसेज टेल्स अस। तो ये दोनों दंपति क्या है, आज्ञा पालन कर रहे थे और अपने बुढ़ापे तक थे। जकरिया याजक था और उसकी पत्नी हारून वंश से थी। ये वो वंश था जिससे याजकी सेवकाई चली बाइबल के, परमेश्वर के वचन। याजक इसी गोत्र से आए हैं। पद 6 में इन दोनों के लिखा है कि ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। किसके सामने? मनुष्यों के सामने नहीं। आज चर्च एट लार्ज, मैं तमिल कलीसिया के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी।
चर्च एट लार्ज क्या कर रहे हैं? मनुष्यों के सामने धार्मिक बन रहे हैं। धर्मी नहीं, इसलिए मैंने वर्ड पहले ही क्लियर की। मनुष्यों के सामने क्या बन रहे हैं? धार्मिक। ये परमेश्वर नहीं चाहता। हमें धर्मी जीवन जीना है इस पृथ्वी के ऊपर, जैसा इस दंपति का था। आगे चले अपने। ये आज्ञा पालन में अक्षरशः परमेश्वर के वचन को वर्ड टू वर्ड, व्यवस्था को वर्ड टू वर्ड पालन करने वाले लोग थे। और परमेश्वर का वचन, आज्ञाएं मानना आसान काम नहीं है। तो ऐसा सहमत है या नहीं? इट इज नॉट इजी जॉब। ये आसान काम नहीं है प्यारा मित्रों। क्यों? क्योंकि आज्ञा पालन में बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी अपने मसीह विश्वास के लिए। प्रभु के साथ चलने के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी कीमतें चुकानी पड़ेंगी। ये लंबे समय से आज्ञा पालन करते आए हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा ऐसे कई जीवन जो प्रभु को समर्पित तो होते हैं और प्रभु के साथ कुछ समय चलते भी हैं, लेकिन जैसे ही आज्ञा पालन कठिन होने लगती है, उसकी डिमांड बढ़ने लगती है, वो कीमत मांगने लगती है, तो आज्ञा पालन करना छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट लाइन। प्रभु से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। लेकिन इस दंपति ने बुढ़ापे तक धर्मी जीवन जिया। पद 6 के अंतिम हिस्से में क्या लिखा है? पद 7 के अंतिम हिस्से में उनके कोई भी संतान नहीं थी। और रीजन क्या था? इलीशिबा बांझ थी, दूसरा वो दोनों बूढ़े थे, उनके कोई भी संतान नहीं थी। इलीशिबा अक्षम थी संतान उत्पन्न करने में, और बुढ़ापे की अवस्था में है जब कोई भी संभावना नहीं है चिकित्सीय दृष्टिकोण से कि उन्हें कोई बालक या बालिका उत्पन्न हो सके। उनके दाम्पत्य जीवन की ये स्थिति भी परमेश्वर की आज्ञा पालन करने में कोई बाधा या रुकावट नहीं बनने पाई। जो स्थिति है उसके बाद भी वे प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं। ऐसे कई दंपतियां आपने देखी होंगी, कई मैरिड कपल्स आपने देखे होंगे जो टूट जाते हैं। क्यों? क्यों विवाह विच्छेद हो जाते हैं? क्योंकि स्त्री, हमारे देश के अंदर ये बड़ी ट्रेजेडी है, बड़ी विडंबना है कि अगर परिवार शादी हुई है, परिवार में बच्चे नहीं हुए तो सबसे पहला दोष किसको दिया जाता है? किसको? स्त्री को, है ना? स्त्री को दिया जाता है और स्त्री को गुड बाय, है ना? लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे धन्य जोड़े के लिए जो ऐसी स्थिति में भी बुढ़ापे तक प्रभु का धन्यवाद उसकी स्तुति करते हुए बिल्कुल विश्वास योग्यता पूर्वक प्रभु की आज्ञा पालन करते हुए चल रहे। बहुत कठिन परिस्थिति के दौर से ये गुजर रहे थे, लेकिन ये आज्ञाकारी बने रहे, विशुद्ध आज्ञाकारी था, प्योर ओबीडियंस। परमेश्वर की आज्ञा पालन करना जीवन में चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो। आपके घर में खुशहाली है, आज्ञा पालन कीजिए। आपके घर में तंगहाली है, आज्ञा पालन कीजिए। आपके बच्चों के जीवन में असफलताएं हैं, आज्ञा पालन कीजिए। आपके घर में दुख बीमारी मुसीबत है, आज्ञा पालन कीजिए। प्रभु को मत छोड़िएगा। Be obedient unto the death. This is what the life of Jesus Christ tells us. तो ये आज्ञा पालन करते हुए बढ़ते चले गए। जकरिया जो है मंदिर में अपनी पारी पर धूप जलाने गया हुआ है, और वचन क्या कह रहा है? 10 पद। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर क्या कर रही है?
प्रीस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य धूप जलाने का कलीसिया के लिए, लोगों के लिए कर रहे हैं, और कलीसिया अपना कर्तव्य निर्वाह कर रही है, क्या करते हुए, प्रार्थना करते हुए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ अपने इस तमिल कलीसिया के लिए। भाई साहब अपनी सूचनाओं में बता रहे थे मॉर्निंग 4 से रात 12 फास्टिंग एंड प्रेयर, chain prayer, all right, chain prayer, which is lacking in many churches, ये बहुत ही दुख की स्थिति है हमारे देश की। आपकी कलीसिया प्रार्थना करने वाली कलीसिया है, फास्ट करने वाली कलीसिया है, प्रेज गॉड। आपके पास्टर आपके साथ, एंड आई बिलीव कि आप उनके लिए प्रार्थना करते हो। यस, अगर नहीं करते हैं तो ये एक उदाहरण है हमारे सामने, जकरिया ऋषिवा का। जकरिया मंदिर में धूप जलाने गया हुआ है और बाहर मंडली उसके लिए क्या कर रही है, प्रार्थना कर रही है। आप याद करिए आरंभिक कलीसिया, द अर्ली चर्च, पॉल एंड साइलस इन जेल, पौलुस और सिलास जेल में है, मध्य रात्रि में वो भजन और स्तुति गान कर रहे हैं, और कलीसिया लिखा है लौ लगाकर, है वो चर्च क्या था, एक मत, विथ वन अकॉर्ड, एक मत, मन लगाकर, लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करो। और क्या होता है, अचानक भूकंप आता है, भूकंप आता है, जेल की देवें हिल जाती है, बंदियों के बंधन जो हैं वो खुल जाते हैं और वे सब आजाद हो जाते हैं। When church prays, miracle happens. जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो प्यारे मित्रों, कलीसिया ही अपनी आंखों से परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखती है। यहाँ पर भी मंडली क्या कर रही है, बाहर जकरिया के लिए प्रार्थना कर रही है, और जब जकरिया के लिए प्रार्थना हो रही है, 11वें पद में लिखा है, उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। दर्शन, विजन ऑफ एन एंजल। क्यों कर पाए जकरिया उस एंजल का दर्शन, जो परमेश्वर की तरफ से मंदिर के अंदर भेजा गया? क्यों? व्हाई? बिकॉज चर्च वाज प्रेइंग आउटसाइड। कलीसिया अपने प्रीस्ट के लिए प्रार्थना जब करती है ना, तो आपके प्रीस्ट को रिवलेशन होता है। मैं आपको बताऊं कि व्हाइट रोब के अंदर, ध्यान से नहीं आ रहा, व्हाइट रोब जो है ना, पैसा कैसे पहने हुए हैं, मेरे पास भी है तो उस रोब के अंदर हम क्या है, साधारण मनुष्य हैं। We are common people, chosen by God, of course, common people. So we need support of prayer of God's people. परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं का सपोर्ट चाहिए। कितना स्पिरिचुअल वॉरफेयर आपके प्रीस्ट को, प्रभु के सेवकों को करना पड़ता है। अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे आप। तो कलीसिया इनके लिए या मंडली इनके लिए प्रार्थना कर रही है, और दूत वहां पर अपीयर हो रहा है एक मैसेज के साथ। जकरिया क्या हो गया, लिखा है 12वें पद में, देख करके और क्या हो गया, घबरा गया, बड़ा भय छा गया, वो डर गया, घबरा गया। नेचुरली शायद उसके लाइफ में पहला दर्शन उसको मिला, उससे पहले शायद उसने कभी एंजल ऑफ द लॉर्ड नहीं देखा, और वो भयभीत हो गया, डर गया। स्वर्गदूत ने क्या कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, मत डर। अभी हमारा विश्व जो है बीते 2 वर्षों से बहुत बड़े आतंक और भय के दौर से गुजरा है। शत्रु नहीं दिखा, आंखों से किसी ने नहीं देखा,
देखा आपने किसी शत्रु को, लेकिन मानवता क्या है, पूरे मौत के खौफ में जी रही। मौत का साक्षात्कार हमने अपनी आंखों से अपने सामने किया, यद्यपि कि हमने शत्रु को नहीं देखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे लिए परमेश्वर की ओर से हमेशा ये संदेश है, डू नॉट अफ्रेड, डरो मत। ये क्रिसमस का संदेश है, डर स्वर्ग से आया हुआ है, भयभीत मत हो, डरो मत, डू नॉट बी फियर। हमें क्या है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमारे सारे डर और भय को दूर करती है। जब हम आज्ञा पालन में अपना जीवन देते हैं तो हमारे सारे भय और डर दूर होते हैं। डर किसको लगता है? डर किसको लगता है? माता पिता घर में है और बच्चा है, ठीक है, माता पिता ने उस बच्चे से बोला कि उनकी आज्ञा है, ये नहीं करना है, अब उसने जो मना किया वही काम है ना, तो क्या होगा? डरेगा, निश्चित तौर से डरेगा। तो डर के कब आता है? जब आप आज्ञा तोड़ते हो। और जब आप आज्ञा पालन में जीवन दोगे तो डरने किससे डरोगे? डरने की क्या जरूरत है? नहीं, परमेश्वर ने ये वचन आज्ञा के रूप में आपको दिए हैं, पालन करिए, डरने की जरूरत ही नहीं। पर मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर से मत डरो। दैट विल बी अ राइचियस फियर। परमेश्वर का डर या भय इसलिए है बिकॉज ही इज गॉड, ही इज ऑलमाइटी, ही इज ऑल पावरफुल, ही इज ऑल नोइंग, ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इसलिए हमें डरना और आज्ञा पालन में अपने जीवन को देते चले जाना है ना। अब हम चले आगे। जकरिया देखकर घबराया, उसको भय छा गया। दूत ने उससे कहा, भयभीत मत हो। और भयभीत नहीं होने के बाद क्या संदेशा है? इसलिए मत डर क्योंकि तेरी प्रार्थना। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि यहाँ अभी तक क्या प्रार्थना, उसका कोई मेंशन नहीं है ना, कुछ भी नहीं बताया। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अब प्रश्न आपके सामने मैं ये कर रहा हूं कि क्या प्रार्थना करते रहे होंगे पति पत्नी के रूप में? हाँ, संतान प्राप्ति के लिए इन्होंने लंबे समय से प्रार्थना की होगी। और अब जीवन की इस स्थिति में ये लोग पहुंच गए थे जहां उन्होंने अपने परिवार की इस स्थिति को स्वीकार कर लिया। ऑल राइट लॉर्ड, इफ इट इज योर विल, लेट इट बी डन। है प्रभु, अगर ये आपकी मर्जी है हमारे दाम्पत्य जीवन के लिए, तो प्रभु आपकी मर्जी पूरी। और उसी में वो जी रहे थे, लेकिन यहाँ परमेश्वर की योजना उनके लिए कुछ और थी। और तब यहाँ पर स्वर्गदूत ये कहते हैं, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्री नहीं, पुत्री नहीं, है ना। और ये भारतीय संस्कृति के चलते अगर हमें पहले से पता चल जाए दंपति को कि पुत्र उत्पन्न होगा तो क्या करेंगे? सारे डीजे ला के बजाना, है ना, होगा नहीं होगा ऐसा? और पुत्री होगी तो पत्नी को घर से बाहर भेज देंगे, कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द कंडीशन, है ना। उससे वो ये उस जमाने की बात है जब भ्रूण परीक्षण की कोई सुविधा नहीं। आज तो सब साइंस ने, मेडिकल साइंस ने संभव कर दिया। तो यहाँ परमेश्वर का संदेश स्वर्गदूत के माध्यम से जकरिया के पास आ रहा है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए क्या होगा? एक पुत्र उत्पन्न होगा और तुझे आनंद और हर्ष, उसका नाम भी दिया है ना। सन इज प्रॉमिस्ड एंड हिज नेम इज आल्सो गिवन, जॉन, यूहन्ना।
और तुझे आनंद और हर्ष होगा। डेफिनेट आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग मेनी इयर्स एक बालक तुम्हारे घर में आने को है और तुम्हें आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। नो व्हाई रीजन 15वें पद में, क्योंकि वो किसके सामने, 6वें पद में क्या लिखा है देखिएगा, पहला हिस्सा, ये दोनों माता पिता परमेश्वर के सामने धर्मी है, तो कोई कारण नहीं कि आपके बच्चे लोग प्रभु के सामने धर्मी ना हो। जब आप एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने या वो पैदा नहीं हुए हैं अभी आप क्या कर रहे हैं, आज्ञा पालन का धर्मी जीवन जी रहे हैं, और प्रभु आपको संतान देता है, तो आपके धर्मी जीवन को जब वे देखते हैं, they will also follow the same path. They will also follow the same path. मुझे दुख तब होता है जब प्रभु के सेवकों के बच्चे गलत राहों पर चलते दिखाई देते हैं। आपने भी देखा हो, ट्रेजिक बिकॉज कई प्रभु के सेवकों ने अपना समर्पण जिस तरह से उन्हें करना था प्रभु को नहीं किया। जो सेवा हमें मिली है प्यारे मित्रों, से रूह कांप जाती है, रूह कांप जाती है। यू नो व्हाई? क्योंकि न्याय का आरंभ किससे हो? इधर होगा पहले। आप लोग का नंबर तो बाद में आएगा, पहले तो डंडे हमारे को। तो अगर ईमानदारी से आपको नहीं सिखाया परमेश्वर का वचन, तो जैसा राजा वैसी प्रजा, है ना? जैसा राजा वैसी प्रजा, वो वाली स्थिति। और कई चर्चेस की हालत है कारण तो आज स्थिति में मैं बता रहा हूँ, आंसू निकलते हैं कई बार कलीसियाओं की दयनीय स्थिति देखकर। अगर प्रभु के सेवक होने के कारण हमारे आंसू निकलते हैं, तो लॉर्ड ऑफ द चर्च कितना रोता होगा। प्रभु जो कलीसिया का प्रभु है वो कितना दुखित होता होगा। जस्ट इमेजिन। तो एज ए चर्च हमारी ये हमारे दायित्व है प्यारे मित्रों कि ना केवल हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, परंतु हम क्या करें, प्रभु की विश्वव्यापी कलीसिया के लिए दुआ मांगे। क्यों? क्योंकि हम वी ऑल आर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु की कलीसिया के एक छोटे से हिस्से हैं जो यहाँ। और अगर हम बाहर कहीं किसी देह के किसी अंग को टूटता हुआ देखते हैं तो दर्द महसूस होना चाहिए। अगर दर्द महसूस नहीं हो रहा है तो हम शायद प्रभु की कलीसिया से उस तरीके से जुड़े हुए नहीं हैं। क्योंकि मेरे हाथ को दर्द तभी होगा जब ये हाथ इस शरीर से जुड़ा हुआ हो। तो मेरी उंगली में अगर चोट लगती है तो पूरा शरीर उसको अनुभव करेगा। मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है प्यारे मित्रों कि हम प्रभु की कलीसिया के लिए दुआ मांगे। जिस सिनेरियो से हमारा देश गुजर रहा है ना प्यारे मित्रों, आज सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हम चाहे हम किसी भी संप्रदाय के हम एक हो जाएं, प्रार्थना में एक हो जाएं, कार्यक्रमों में एक हो जाएं, योजनाओं में एक हो जाएं, वचन की शिक्षाओं में एक हो जाएं। देखिए आप प्रभु कितना बड़ा मिरेकल करेगा हमारे साथ। देश हिल जाएगा, ये देश हिल जाएगा। हमें यूनाइट होने की जरूरत है और उसके लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन में बढ़ना होगा। प्रभु के सामने हमें अपना जीवन जैसा प्रभु चाहता है वैसा बिताना होगा। 15वें पद में लिखा है क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा
कभी ना पिएगा। आज की वर्तमान स्थिति जो है, अगर आप युवा पीढ़ी को देखेंगे आज की, चर्च के बाहर नहीं, मैं चर्च के अंदर की युवा पीढ़ी, चर्च के बाहर तो है ही, चर्च के अंदर की युवा पीढ़ी लिखा क्या है, वो दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। और आज की युवा पीढ़ी की पहचान कि वे हाई सोसाइटी के लोग हैं। वो लोग क्या करते हैं, डैश डैश डैश, समझ सकते हैं आप, बोलने की जरूरत नहीं है। और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से क्या हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। माता के गर्भ ही से वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा भेजा जा रहा है, परमेश्वर के द्वारा से वो भेजा जा रहा है। और 16वें पद में उसका मिशन, इस बालक का नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया, ये कैसा होगा, इसके द्वारा से लोगों को क्या मिलेगा, और उसके बाद उसका मिशन क्या होगा इस बालक का। इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में हो करके उसके आगे आगे चलेगा कि पुत्रों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे। और अब देखिएगा, ये महत्वपूर्ण पार्ट है, आज्ञा न मानने वालों को कहां लेके आएगा, धर्मियों की समझ पर लाएगा। आज्ञा न मानने वाले, आज आज्ञा ना मानने वालों की बड़ी भीड़ है, और उनको परमेश्वर की धार्मिकता की समझ पर लाने के लिए आपको और मुझे प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। आर वी रेडी टू कमिट आवरसेल्व्स? क्या हम अपने आप का समर्पण करने को तैयार हैं ना? यहाँ पर परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दी जकरिया को कि तुझे एक निर्धारित समय के ऊपर क्या मिलने वाला है, बालक मिलने वाला है, तेरी पत्नी यीशुवा से पुत्र उत्पन्न होगा, नाम दिया गया यूहन्ना, और यूहन्ना के नाम का अर्थ है परमेश्वर अनुग्रहकारी है। गॉड इज ग्रेशियस, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। और इस बालक को परमेश्वर अपने तरीके से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल में लेगा। ये सब होने के बाद अब क्या है, 18वें पद में जब हम आते हैं तो जकरिया स्वर्गदूत से पूछता है, यह मैं कैसे जानूं, ये मैं कैसे जानूं? बहुत स्वाभाविक प्रश्न, स्वाभाविक प्रश्न था उसका, वेरी नेचुरल क्वेश्चन, बहुत ही साधारण सा स्वाभाविक प्रश्न उसके मन में आता है। पद 18 में हम इस बात को पाते हैं, स्वर्गदूत उसके इस जिज्ञासा को, इस बात को जो उसने प्रश्न के रूप में रखी, उसको वहीं शांत कर देता, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा और सामर्थ के ऊपर शंका करने के लिए उसे क्या सजा मिल जाती, क्या सजा मिलती, गूंगा हो जाएगा, तू मुंह बंद कर, बोल नहीं सकेगा। इतनी बड़ी सजा उसको, एक छोटा सा प्रश्न पूछने, प्रश्न बहुत स्वाभाविक, बहुत साधारण सा, बहुत छोटा सा, लेकिन उसको क्या मिलती है, एक बड़ी सजा। किसकी है? संभवतः इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का याजक है, परमेश्वर का याजक है। एक दूसरा, परमेश्वर के व्यवस्था नियमों के ऊपर चलने वाला धर्मी व्यक्ति, तो व्यवस्था को वो जानता है, परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को वो जानता है जो परमेश्वर ने अतीत में उसकी चुनी हुई कौम इस्राएल के साथ किए हैं। जब उसको ये मालूम है कि परमेश्वर असंभव काम करने वाला परमेश्वर है, तो क्या वो तेरे घर में असंभव काम को पूरा नहीं करेगा? उस पर उसकी जब शंका उत्पन्न होती है तो उस बात की उसे सजा मिलती है। परमेश्वर के वचन में हम एक सिद्धांत यहाँ पर पाते हैं, प्रिंसिपल हम यहाँ पर पाते हैं, क्या? ध्यान से सुनिएगा, आज्ञा नहीं मानने वालों से ज्यादा, आज्ञा नहीं मानने वालों से कहीं ज्यादा
कठोरता परमेश्वर उन लोगों के साथ करते हैं या अनुशासन उन लोगों के ऊपर रखते हैं जो आज्ञा मानते हैं। आप धर्मी जीवन जी रहे हो, बावजूद उसके प्रभु की छड़ी कई बार आपके ऊपर। बहुत बार हम स्वाभाविक प्रश्न परमेश्वर से करते हैं, बहुत सारी जीवन में विपरीत बातें हो रही हैं, आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के अनुसार, लेकिन फिर भी बहुत सारी इच्छाओं के विपरीत काम हो रहे हैं। आपका स्वाभाविक प्रश्न निकलता है, व्हाई मी लॉर्ड? प्रभु का आंसर आता है और प्रभु जवाब देते हैं, व्हाई नॉट विथ, व्हाई नॉट विथ यू। प्रभु कई बार हमें अनुशासित करने के द्वारा से हमें देखने वाले लोगों को बहुत कुछ सिखाते हैं हमारे जीवन के अनुशासन से। तो यहाँ पर प्रभु ये सजा उसको देते हैं, आज्ञा पालन करने की कीमत चुकानी पड़ती है। यदि हमारे जीवन में, हमारे मसीह जीवन में, हमारे विश्वास के जीवन में हम ऐसी परेशानियों के दौर से नहीं गुजर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम आज्ञा मानने में चूक कर रहे हैं। याद रखिए, क्योंकि कीमत चुकानी पड़ेगी। मोल तो आपको और मुझे देना पड़ेगा। अब आइए आगे चलें, अंतिम हिस्से में 57 पद के आगे 57 वर्ष, धर्मी दंपति की इस आज्ञा पालन को देखें हम। जब बालक के जन्म लेने का समय आया, लिखा है एलीशिबा को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, और जब उनको पुत्र मिलता है सब लोग आनंदित हैं। व्यवस्था के अनुसार 8वें दिन उनका क्या होना है, क्योंकि मेल चाइल्ड है इसलिए व्यवस्था के अनुसार खतना किया जाना है, उसका नामकरण होना है। ठीक ऐसा ही यीशु मसीह के साथ भी हुआ, जैसा हम सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर और 1 जनवरी। तो 1 जनवरी इज नेमिंग ऑफ जीसस। यहाँ पर ठीक वैसा ही उसके लिए होता है, नामकरण की बात आती है। और उस समय जो प्रचलित व्यवस्था थी उसके अनुसार जैसा नाम पिता का वैसा ही उसके पुत्र का नाम रखा जाता था। लेकिन यहाँ माँ से जब पूछा जाता है तो एलीशिबा यूहन्ना नाम बता, और ये सजेस्ट किया जाता है कि उसके पिता से भी पूछ लिया जाए कि इस बच्चे का नाम क्या रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, कैसे एक्सप्रेस करे। तो लिखने के लिए वो एक स्लेट मंगाता है और उस स्लेट के ऊपर लिखता है यूहन्ना, और जैसे ही वो यूहन्ना लिखता है, लिखा है, उसकी जीभ खुल गई और वो परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने लगा। यूहन्ना वो नाम देता है जो नाम उससे मंदिर के अंदर दर्शन के द्वारा से परमेश्वर की ओर से दिया गया। उस नाम को जब वो प्रकट करता है तो सब लोग क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। बड़ा आश्चर्य कर्म उसके जीवन में होता है कि वो जीभ जो बंद थी वो खुल जाती है। आज के वर्तमान युग में प्यारे मित्रों, आप देखिएगा कई मसीही परिवार जो हैं अपने बच्चों के जीवन के संबंध में, अपने बच्चों के फ्यूचर के संबंध में, अपने बच्चों के नामकरण के संबंध में, अपने बच्चों के विवाह करने के संबंध में, अपने बच्चों के व्यवसाय को चुनने के संबंध में परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। They don't go to the law. What is your will, Father, for my child? मेरे बच्चे के लिए परमेश्वर आपकी क्या मर्जी है, रिवील माता पिता नहीं कर रहे हैं, और इसलिए प्यारे मित्रों बच्चों के जीवन असफल होते हैं। कई परिवार बच्चों के इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि माँ के पहले माता पिता ने परमेश्वर से अगुवाई नहीं मांगी, गलत पार्टनर्स चुन लिए गए, अंत हुआ विवाह विच्छेद। ये दंपति जो है ये धर्मी दंपति थी, प्रभु की आज्ञा पालन करने वाली दंपति, प्रभु के साथ साथ चलने वाली दंपति, प्रभु की आज्ञा पालन के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार दंपति, और मंडली इनके लिए प्रार्थना कर रही थी।
परमेश्वर ने एक मिरेकल किया, ऐसा मिरेकल जो असंभव था, असंभव मानवीय दृष्टिकोण से, चिकित्सीय दृष्टिकोण से असंभव, लेकिन ये तब हुआ जब इस दंपति ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। और हम आगे चलकर देखते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट जो इस पृथ्वी के ऊपर आया, वो प्रभु के आगे प्रजा तैयार करने के लिए फोर रनर के रूप में भेजा गया, अग्रघोषक। एक ऐसी प्रजा प्रभु के आने के पहले तैयार वो करने के लिए भेजा गया, जिसमें जो तैयार प्रजा जो थी उसमें आकर के प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैला सके। आज्ञा पालन प्रभु डिमांड करते हैं। क्रिसमस आपको और मुझे आज्ञा मानना सिखाता है। प्यारे मित्रों, क्या हम इस दंपति के समान इस वर्ष, इससे पहले कि हम जनवरी 1, 2022 तक प्रवेश करें, इस प्रकार का रिजोल्यूशन लें कि हम इस नव वर्ष में अपना व्यक्तिगत जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, अपना सेवकाई का जीवन प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए समर्पित करेंगे। और आप निश्चय जानिए कि परमेश्वर इस वर्ष आपको देखिए किस अद्भुत रीति से आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करते हुए अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आज की सुबह बहुत से आशीषित करें और हमारी सहायता करे कि हम आज्ञा पालन में अपना जीवन देने पाए। ये क्रिसमस का संदेश है। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। जकरिया और एलीशिबा के जीवन से प्रभु जी आपने आज हमसे बात की है। इनका धर्मी जीवन प्रभु जी हमारे लिए चुनौती है, इनका आज्ञा पालन हमारे लिए चुनौती है। इनके जीवन में जो आश्चर्य कर्म हुआ वो हमारे लिए एक चुनौती है। जकरिया ने पिता मंदिर में दर्शन पाया इस कारण से क्योंकि कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया के लिए ये चुनौती है। प्रभु आप हमारी सहायता और हमारी मदद करें ताकि हम अपने आज से आगे के जीवन में आपके वचन को माने जाने के लिए, आज्ञा पालन के लिए प्रभु हम समर्पित करें। पिता परमेश्वर, आप ऐसा करने के लिए हमें अपना अनुग्रह, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य और अगुवाई प्रदान करें। धन्यवाद प्रभु आपके जीवित वचन से हमसे बात करने के लिए। सारा आदर गौरव हम आपको देते, धन्यवाद के साथ देते उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।